Hello everyone, this is Vik sir. In our previous video of parallel and transversal, we have started with first exercise, right? In that video, we have seen definitions of parallel line and transversal, and we have seen few concepts related to angles formed by the transversals. Now, in this video, we will see properties of parallel line and transversal. So, let us begin with the lecture. Let us see first property, which is regarding corresponding angle. Okay, what is the property? Each pair of corresponding angles formed by the parallel line and the transversals are congruent. मीन्स क्या? जो हम लोग के पैरेलल लाइंस है और उसके ट्रांसवर्सल्स है, उसके थ्रू जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे वो सारे के सारे एंगल्स क्या होने वाले हैं? कॉन्ग्रेंट होने वाले हैं. कॉन्ग्रेंट मतलब क्या? इक्वल होने वाले हैं. ओके, सी करस्पॉन्डिंग एंगल बोलो तो क्या फॉर्म होता है? एफ फॉर्म होता है, राइट? यस, दिस एंगल and this angle is my corresponding angle because this line and this line is forming F with transversal, right? Yes, so this one and this one will be our corresponding angle, right? Which one? Can you write the name? हमेशा अभी नाम जो है वो नाम किस में लिखना है? 3 लेटर में लिखना है. ओके, हाउ विल यू राइट? A F G for the first one. A F G. Second angle कौन सा है? This one. So for this I will write C G H. प्रॉपर्टी क्या बोलता है? जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, विच वन? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर कॉन्ग्रेंट. सो यू हैव टू राइट कॉन्ग्रेंट between them. Clear with this? Okay, similarly, see this line and this line is forming F with transversal, right? Yes, means what? This angle and this angle is our corresponding angle, right? Yes, you can see this figure. This is my line, right? This line and this line is forming corresponding angle, right? I can write name over here. This is point B, this is point F, and this is point G. Okay, this is point D, this is point H. So here this point and this point is forming which angle? Corresponding angle, right? Yes, so I can write BFG is congruent to angle DGH. Which one? BFG is congruent to DGH. Clear with this? Right? Similarly, I can write for this one. See, these two lines are also forming corresponding angle, but ulta ban raha hai, right? Yes, you can draw over here. See, this one is my this line and ये वाला कौन सा है? This one, and this is my transversal, right? Yes, so this angle and this angle is forming corresponding angle, right? What is the name? C G F for this point, A over here, and this is point E. Clear? Okay, so what is the name of this angle? This angle, ये एंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है, राइट? यस, सो नाम क्या हो जाएगा? C G F. इवन यू कैन राइट F G C, दोनों चलेगा, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो G है वो कहाँ पे है? हमारा एंगल है, सो हमेशा वो बीच में आना चाहिए. ओके, सो वी विल राइट C G F. व्हाट इज नेक्स्ट एंगल? A F E, or else you can write E F A. Still it is fine. Clear with this? Okay, this is my pair of congruent corresponding angles, right? So I have to write congruent sign over here. Clear with this? Yes. So यहाँ पे G जो था हमारा एंगल था, right? So you have to write G in the middle. यहाँ पे एंगल कौन है? F है, so you have to write F in the middle. Clear with this? Okay. Now what is our next corresponding angle? See, this line and this line is making corresponding angle with this transversal, right? Yes, I can draw over here. See,
these two my parallel lines and this is my transversal. So here this angle and this angle is forming corresponding angle, right? Yes. What is the name of point? This is my E, this is F, this one is B, and this is my point G, and this is my point D. Clear with this? Okay. So here angle DGF is congruent to angle BFE, right? Why I have written congruent sign over here? Because हमारा रूल बोलता है, हमारा जो प्रॉपर्टी बोलता है, क्या बोलता है कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स है दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट रहने वाले हैं. क्लियर विद दिस? सेम थिंग वी हैव सीन इन फर्स्ट एक्सरसाइज, बट वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली एंगल का नाम दिया था ABC और 1 2 3. यहाँ पे एंगल का नाम नहीं दिया है, सो आपको एंगल का नाम लिखना पड़ेगा. एंगल का नाम हम लोग कितने लेटर में लिखते हैं? 3 लेटर में लिखते हैं. कितने लेटर में लिखते हैं? 3 लेटर में लिखते हैं, राइट? यस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एंगल. ओके, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C. मेरा एंगल कौन है? B है. सो यू हैव टू राइट B इन द मिडल. B इन द मिडल. ओके, A बचा, C बचा. यू कैन राइट A आगे, C पीछे, और एल्स C आगे, A पीछे. क्लियर विद दिस? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एंगल ऐसा है इन दिस वे, सो लेट अस अज्यूम दिस इज माई एंगल. This is a point PQC. So here your angle is Q. So Q will come in middle. Okay. P and C you can write आगे पीछे. Okay. So this is my angle. So you have to write angle in 3 letters. Okay. The point जो है जहाँ पे मेरा एंगल रहेगा that point will come in middle. Rest 2 points will come आगे पीछे. Clear with this? Okay. Now we will see properties of alternate angle. ओके. अल्टरनेट एंगल भी सेम ही बोलता है. अल्टरनेट एंगल क्या बोलता है कि अगर मेरे पास पैरेलल लाइंस है, ओके, टू पैरेलल लाइंस है और उनके ट्रांसवर्सल्स है, दे विल फॉर्म सम एंगल्स. ओके, दे विल फॉर्म अल्टरनेट एंगल्स. दैट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे वैसे आपको अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट मिलने वाले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सपोज टू फाइंड योर अल्टरनेट एंगल्स. ओके, अल्टरनेट एंगल्स मिल गया, pair of alternate angles मिल गया, then you can write congruent sign over here. For example, see, my this angle and this angle is alternate angle, right? Yes. How? They are forming Z. See carefully over here. This is my Z, right? Yes. So this angle and this angle is forming Z. Okay? So this is my alternate angle. ये Z कहाँ पे बन रहा है? Inside the line. So this is interior alternate angle. Clear with this? Yes. So write the name AFG for the first angle. For the second angle FGD, or else you can write DGF. Okay. ये मेरा क्या है? पेयर ऑफ alternate angles है. They are congruent. So you have to write congruent sign over here. Clear with this? Okay. What is our next alternate angle? See, this line, this one is making Z with this one, right? This one. So here this angle and this angle is our alternate angle, right? Yes, because these two lines are forming Z over here. Yes. Which one? This angle and this angle. What is the name of this angle? BFG. What is the name of this angle? CGF. And they are congruent. Clear with this? Okay. अगर ऐसे नहीं समझता ना, what you can do? Separately पर diagram draw कर लो. See, this is B, this is F, this is G, and this is C. So this angle and this angle, right? So for this angle, what you will write? BFG. Okay. And for this angle, you will write CGF. Clear with this? Okay. Those angles are congruent. वो एंगल लाइन के अंदर फॉर्म हो रहे थे, राइट? सो इसके लिए क्या हो जाएंगे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. नाउ इन केस ऑफ एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल व्हाट हैपन? लाइन कहाँ पे, जो एंगल जो है कहाँ पे फॉर्म होता है? लाइन के ऊपर साइड फॉर्म होता है, राइट? यस. फॉर एग्जाम्पल, आई विल जस्ट एक्सटेंड दिस ट्रांसवर्सल्स. ओके, दिस इज माई पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट H. सो ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है? लाइन के ऊपर बनता है. सी, ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल है, राइट? राइट? यस.
सो एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला रहेगा दैट यू हैव टू टेक. ओके, सो ऊपर कौन है, ई एफ बी, ई एफ बी and CGH. These two angles are congruent. Clear with this? Okay. So this one and this one we have taken. Okay. Now see next alternate angle. Which one is next one? AFG and FGD. Let us draw separately. This is my alternate angle. AFG and this point is D. Let us extend this line. Yes, I have extended. So this is my alternate angle, right? ये line के नीचे था, we have to take ऊपर वाला for exterior. Okay, this one. Clear with this? What is the name of this point? E. And what is the name of this point? H. Right? Yes. So here, what will be your angle? AFE or else EFA. Whatever you want, you can write. EFA is congruent to angle HGD or DGH. DGH. So this is my exterior alternate angle. Okay, so just you have to keep in mind, अगर इंटीरियर बोला सो जेड फॉर्म होना चाहिए, दैट अंदर वाला एंगल यू सपोज टू टेक. एक्सटीरियर बोला तो उसके ऊपर वाला एंगल यू हैव टू टेक फॉर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. ओके, इन केस ऑफ करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल क्या होगा, तुम्हारा जो एंगल्स है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. ओके, सो पेयर ऑफ एंगल जस्ट यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू रिप्लेस कॉन्ग्रेंट साइन बिटवीन देम. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल. ओके, इंटीरियर एंगल मतलब क्या, सी फॉर्म होता है. यस, सी कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज मेकिंग सी, राइट. यस, सो दिस एंगल and this angle will be your interior angle. Which one? A F G and F G C. So here you have to write F G and C, right? This is your interior angle. What is the property? Each pair of interior angle is supplementary, right? Supplementary means अगर मैं उनका addition करूँगा तो एडिशन करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आने वाला है. मीन्स जो इंटीरियर एंगल रहेंगे वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते. याद रखना, इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते. आपको क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स का एडिशन करना है. दैट एडिशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली सी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल विद दिस लाइन. विच वन? दिस वन, right? Okay, what is the name? BFG plus DGF. They are forming interior angle, so sum of these two angle will be equal to 180 डिग्री, right? मतलब alternate and corresponding के केस में उनका जो सम था वो सम 180 नहीं था, वो जो एंगल थे वो एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट थे, एक दूसरे के इक्वल थे. बट इंटीरियर में वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते. इंटीरियर में वो एंगल का जो एडिशन है दैट एडिशन इज विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल. नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 2.1. So let us see first question. What is first question? Choose the correct alternative. मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, MCQ टाइप का है, राइट. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? इफ लाइन M इज पैरेलल टू N, ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट. यस, पैरेलल है मतलब वो अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल फॉर्म करने वाले है. और ट्रांसवर्सल कौन है? P. P क्या है? ट्रांसवर्सल है. देन फाइंड X, हमको X निकालना है. यस, हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करते हैं X वाले टर्म किधर किधर है. Say this one is my x, this one is my x, right? What can you see? ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बना रहे? इंटीरियर एंगल बना रहे, C. ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करे? C फॉर्म करे. मीन्स क्या फॉर्म करे? इंटीरियर एंगल. कौन से? 3x एंड x
क्या फॉर्म करे, इंटीरियर एंगल फॉर्म करे। और आपको पता है, क्या पता है कि जो इंटीरियर एंगल है उनका एडिशन करने पे कितना आता है, 180 आता है, राइट। यस, बिकॉज इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका एडिशन करने पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो जस्ट एड इट, 3x + x बिकम 4x, हियर 4 इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो 4 को उधर लेके जाओ, सो कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, राइट। यस, 180 को 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 45। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। यस, मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन सी करेक्ट था, राइट। यस, अगर आपको डायरेक्टली समझते हैं आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ये कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या है, MCQs है, ओके। या फिर आप ये कैलकुलेशन रफ में कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन जस्ट आपको समझाने के लिए करके दिखाया। Similarly, we can solve second question, right? Yes. What is second question? If line A and B is parallel, see these two lines are parallel and this is transversal. ये भी सेम क्वेश्चन है, जस्ट डायग्राम क्या कर दिया उन्होंने, उल्टा दे दिया। अगर मैं यही क्वेश्चन को ऐसा रोटेट कर दूँ ना, व्हाट कैन यू सी, ये दो लाइन पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये सेम क्वेश्चन था, जस्ट वो क्या कर रहे, क्वेश्चंस को, लाइंस को रोटेट करके दे रहे ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो, बट कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। यस, आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, एक्स की, राइट। यस, एक्स किधर किधर है, इधर इधर है, राइट। यस, फर्स्ट थिंग आपको क्या ध्यान में देना है, सी ये एंगल 2x है, यस, ये एंगल 4x है, दिस वन इज़ 4x। अगर आपको ये एंगल पता रहेगा सो आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन इज फॉर्मिंग सी, मतलब ये दोनों इंटीरियर एंगल है। बट आपको ये एंगल पता है क्या, दिस वन, ये एंगल कितना है, नहीं पता है, आप निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है कि जब भी x बनता है तो वहाँ पे क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। मीन्स अगर ये एंगल x है सो ये एंगल क्या हो जाएगा, x, मतलब आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल y है, सो ये एंगल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बिकॉज इसके सामने वाला कौन है, ये है। तो सिमिलरली अगर ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस, सो वर्टिकली अपोजिट से हमको ये एंगल मिल गया, कितना मिल गया, 2x। हम इसको सम जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉपरली स्टेप वाइज लिखेंगे, अभी फिलहाल MCQ चेक करें, सो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। यस, सो आपको ये मिल गया 2x, कैसे मिला, वर्टिकली अपोजिट। सो ये 2x था तो ये भी कितना हो गया, 2x हो गया ना। व्हाट यू कैन सी, ये एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है, कौन, 4x एंड 2x आर इंटीरियर एंगल, yes, and sum of interior angles are supplementary, yes. So 4 + 2 will be 6x equal to 180. Take 6 on that side, so divide हो जाएगा, okay, एक cancel हो गया, how much you got, 30. So here the value for second question is 30 degree. Clear with this? Okay. Now we will see question number 2. अब ये क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके MCQs नहीं है, ये सम्स है, राइट। यस, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, इन द फिगर लाइन P इज पैरेलल टू Q, ये लाइन इसके पैरेलल है, T एंड S आर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे कितने ट्रांसवर्सल दिए हैं, 2 दिए हैं, राइट, बट आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट विल रिमेन सेम। क्लियर विद दिस? ओके, फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y। हमको क्या करना है, ये जो डायग्राम दिया है इसके थ्रू x की वैल्यू और y की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब क्वेश्चन आता है कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या आता है, हम कैसे निकालेंगे, कुछ तो होना चाहिए निकालने के लिए, राइट। यस, सो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन उठता है क्यू सी, ये एंगल 40 डिग्री है, राइट, एंड ये एंगल भी क्या है 40 डिग्री। कैसे, सी यहाँ पे एंगल ए दिया है, बट दिस लाइन एंड दिस लाइन इज मेकिंग विच एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सी एफ फॉर्म कर रहा है, राइट। यस, मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। सो व्हाट यू विल राइट, लाइन P is parallel to line Q and
ये केस में ट्रांसवर्सल कौन है? टी। टी क्या है? ट्रांसवर्सल है। एंड लाइन टी इज ट्रांसवर्सल। क्लियर विद दिस? ओके, वो ट्रांसवर्सल है। सो जिसकी वजह से ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 40। क्लियर विद दिस? यस, बिकॉज वो क्या फॉर्म करे? करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करे। सो जस्ट राइट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, मतलब वो एंगल इक्वल होंगे। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो ए कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, राइट? यस। नाउ व्हाट कैन यू सी? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी, ये लाइन ऐसा है, दिस इज माई ए, राइट, एंड दिस इज माई एक्स। क्या दिख रहा है? ये जो लाइन है, ओके, उसमें दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। अगर मैं दोनों एंगल को ऐड कर दूँ तो कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। यस, मतलब ये कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल है। कौन सा एंगल है? लीनियर पेयर। सो हियर वी गॉट measure of angle A as 40 degree, right? Yes. Now we can apply the concept of linear pair over here. तो क्या हो जाएगा? measure of angle A plus X is equal to 180 degree, right? Yes, because linear pair कितने होते हैं? दोनों एंगल का एडिशन करने पे 180 आता है। Yes, वही मैंने लिखा। जो मेरे एंगल A थे और X थे उसका एडिशन करेंगे तो 180 आएगा। रीज़न क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो जिसकी वजह से वो 180 हो जाएगा। ये अभी आपने निकाला 40, x विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू 180। सो x विल बी 180, टेक 40 ऑन दैट साइड, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 40 विल बी हाउ मच? 140 डिग्री। x मिल गया? यस, वेरी सिंपल। सिमिलरली वी कैन फाइंड y। हाउ? ये एंगल 70 है, राइट? यस, तो ये भी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्यों? आमने सामने वाले एंगल है। यस, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो हियर द मेजर ऑफ एंगल बी विल बी 70 डिग्री। यू कैन राइट डायरेक्टली, बट आपको रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो जिसकी वजह से दोनों की वैल्यू सेम हो गई। कितनी हो गई? 70 हो गई। नाउ व्हाट कैन यू सी? y इधर है, यस, और b इधर है। y और b क्या बना रहे हैं? c बना रहे, राइट? यस, मतलब वो क्या फॉर्म कर रहे? इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे। यस, और आपको पता है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट? यस, बट बिफोर दैट जस्ट राइट डाउन लाइन p इज पैरेलल टू लाइन q, और ये केस में ट्रांसवर्सल कौन है? s, एंड लाइन s इज ट्रांसवर्सल, राइट? यस, सो ट्रांसवर्सल है और वो लाइन पैरेलल है। ओके, सो जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होते हैं, सो जो उनके इंटीरियर एंगल है, कौन? इंटीरियर एंगल, उसका सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है, राइट? यस, तो हियर यू हैव टू राइट द रीजन। रीजन क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, फाइन। सो एंगल y वी हैव टू फाइंड आउट। b कितना है? जस्ट c, 70। यू कैन राइट 70 इन द प्लेस ऑफ b, विच इज इक्वल्स टू 180। टेक 70 ऑन दैट साइड, प्लस है तो इट बिकम माइनस। सो 180 माइनस 70, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, हाउ मच यू विल गेट? 110। क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Okay, yes. What is question number 3? In the figure, line P is parallel to line Q. P जो है वो किसके पैरेलल है? Q के पैरेलल है। L जो है वो किसके पैरेलल है? M के पैरेलल है। ओके, या फाइंड द मेजर ऑफ ABC। हमको ABC का क्या करना है? मेजरमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कुछ आइडिया? C, ये एंगल कितना है? C है, यस, सो ये एंगल भी C हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट? यस, और एल्स व्हाट कैन यू सी? ये एंगल दिस वन एंड दिस वन इज फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल। ये अंदर वाला है, सो बाहर वाला क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यस, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो सी की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी 80 डिग्री।
एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। आप ऐसा भी कर सकते हो, और एल्स ये एंगल सी है, सो ये भी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो दोनों केस में तुमको कितना मिलेगा, 80 डिग्री ही मिलेगा। सो आपको जैसे अच्छा लगता है आप सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू विल राइट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, और ये केस में ट्रांसवर्सल कौन हो गया, पी। लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। Clear with this? Okay. So here x, the measurement of angle C will be 80 degree directly. ये एंगल इसके इक्वल होता है. Okay, why? Because they are pair of exterior alternate angle. इसके लिए, or else you can write this C then this is C. फिर ये दोनों corresponding हो जाएंगे. वो केस में क्या आ जाएगा, वही आने वाला है. क्या आने वाला है, 80 डिग्री. क्लियर विद दिस? ओके. तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हो गए. और आपके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं. तो जिसकी वजह से दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. सो ये 80 था, इसलिए सी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा. सो मैंने यहाँ पे रीजन लिखा, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, इसलिए उनकी वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई. ओके, सो हमको सी मिल गया. Now we have to see for A. See, this is 80 degree. Yes. ये एंगल A है ना, this one. So what can you see? ये लाइन और ये लाइन मिलके क्या बना रहा है, C बना रहा है. Yes, C ऐसा फॉर्म हो रहा है, right? This is 80 degree and this is my angle A. So ये केस में क्या हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. Yes, कौन पैरेलल है, P पैरेलल है Q के. So here we can write line P is पैरेलल टू लाइन Q. ओके, और ये केस में ट्रांसवर्सल कौन हो गया, ये वाला लाइन. यस, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है. कौन सा, लाइन L. लाइन L इज ट्रांसवर्सल, राइट. यस, सो ये क्या फॉर्म कर रहे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं. यस, सो 80 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल A आर फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल. और हमको पता है, क्या पता है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट. यस, सो जिसकी वजह से उनका सम 180 हो जाएगा. यस, टेक 80 ऑन दैट साइड. सो प्लस है तो माइनस हो जाएगा. यस, सो जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एज 100. सो हमको सी भी मिल गया, ए भी मिल गया. ओके, यहाँ पे राइट क्या लिखा था, जस्टिफाई योर आंसर्स. तो हमने क्या किया है, जस्टिफाई भी किया है, मतलब रीजंस भी दिया हुआ है. क्लियर विद दिस? ओके, नाउ वी सपोज टू फाइंड एंगल बी. क्या निकालना है, बी निकालना है. यस, बी किधर है, इधर है, दिखा. यस, बी और सी को देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है. यस, मुझे भी अच्छा दिख रहा है. सी, दिस इज माई एंगल बी एंड दिस इज माई एंगल सी. व्हाट कैन यू सी, बी एंड सी क्या फॉर्म कर रहा है, एफ फॉर्म कर रहा है. यस, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है. दिस इज माई एंगल बी एंड दिस इज माई एंगल सी, राइट. ये कौन सी लाइन है, दिस वन, ये P है. ये कौन सी लाइन है, दिस वन, ये Q है, राइट. सो ये लाइन P है, ये लाइन Q है. ये कौन सी लाइन है, M है, राइट. यस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है. कौन, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q. और ट्रांसवर्सल कौन हो गया, दिस वन, लाइन M इज ट्रांसवर्सल, राइट. यस, सो जिसकी वजह से ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज वो क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल B विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C बिकॉज दे आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. यस, और pair of corresponding angles are congruent, right. Yes, so measurement of angle B will be equal to measurement of angle C. Angle C का measurement हमने कितना निकाला था, 80 डिग्री. Let us assume this is equation number 1. So हम लोग क्या करते हैं, C के प्लेस पे 80 को पुट कर देते हैं.
सो बी की भी वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई. कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. क्लियर विद दिस? ओके. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 4. What is the question? In figure, line A is parallel to line B and L is transversal. ये इसके parallel है, right? ये transversal है. सबसे मजे की बात, see this two lines, ये क्या फॉर्म करे, F फॉर्म करे. see carefully, these two lines are forming F. so ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, because they are pair of corresponding angles. yes, so here what can you write? line A is parallel to line B and this line, which one? Z. line Z is transversal. वो क्या है, ट्रांसवर्सल है. yes, therefore measure of angle X will be equal to 105. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. अगर ये एंगल 105 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 105. मतलब x की वैल्यू 105 आ गई. yes, why? because pair of corresponding angles are congruent. इसके लिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. x मिल गया. yes, अरे वाओ, ये x मिला, राइट. ये y है, क्या दिख रहा है, दोनों आमने सामने है. yes, मतलब क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. yes, और आपको पता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो अगर ये x है तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, बिकॉज दोनों एंगल क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं, राइट. यस, सो आपको एंगल x कितना मिला, 105 मिला. तो x के प्लेस पे 105 कॉपी कर लो, राइट. यस, सो ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 से, राइट. यस, तो आपको y की वैल्यू मिल गई. यस, कितना मिल गई, 105. कैसे मिली, because they are vertically opposite angles and vertically opposite angles are congruent. मतलब वो भी क्या होते हैं, equal होते हैं. clear with this? okay. now what can I see? ये 105 है, right? yes. ये कितना है, z है. yes. so क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल, this one is 105 and this one is z, right? yes. so अगर मैं ये एंगल को ऐड कर दूँ तो कितना फॉर्म होता है, 180 डिग्री. यस, मतलब ये क्या है, लीनियर पेयर है. जी हाँ. सो हियर 105 प्लस मेजर ऑफ एंगल जेड, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल. एंड लीनियर पेयर एंगल जो है उनका हम एडिशन करेंगे तो 180 आता है. सो टेक 105 ऑन दैट साइड, वो प्लस है. सो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट एंगल जेड एज 75 डिग्री. क्लियर विद दिस? ओके, अंडरस्टूड. सो हमको क्या मिल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गया. नाउ विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकेंड प्रैक्टिस सेट. ओके, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर लाइन पी एल क्यू सबके सब पैरेलल है. यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स निकालना है. दिस वन, ये निकालना है. ये कैसे मिलेगा? सी, एक्स मतलब कौन, ये बड़ा वाला. मैं इसको थोड़ा सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा. सी, दिस इज़ माई एक्स, बट एक्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक ये पार्ट है, दिस इज़ ए, और ये दूसरा पार्ट है, दिस इज़ बी. तो एक्स मतलब ये टोटल पूरा, राइट. एक्स कैसे मिलेगा, एंगल ए और बी दोनों को ऐड कर देते हैं. मतलब अगर हम लोग ये छोटू एंगल को ऐड कर देंगे तो ये बड़ा वाला मिल जाएगा. ऑफ कोर्स, मतलब एंगल एक्स कैसे मिलेगा, ए और बी को ऐड करना पड़ेगा. बट ए और बी को कब ऐड कर पाओगे, जब आपके पास ए और बी की वैल्यू होगी तब ना. बट फिलहाल कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, राइट. यस, सो आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. क्लियर विद दिस? ओके. यहाँ पे ये लाइन के कुछ नेमिंग नहीं दिए हैं, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ. ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. क्लियर? ओके. सो पहले हम लोग ए का निकालते हैं. किसका? ए का. सो ए के केस में व्हाट कैन यू सी, ये लाइन पी है, ये लाइन एल है, दोनों पैरेलल है. यस. और ये जो लाइन है कौन, ये ए बी, वो क्या है, ट्रांसवर्सल है. यस. सो आई विल राइट लाइन P is parallel to line L and
line AB is transversal, right? Yes, ट्रांसवर्सल है. सो सी, ये मेरा एंगल 40 है और दिस इज माई एंगल ए. व्हाट कैन यू सी? ये लाइन और ये लाइन क्या फॉर्म कर रहे? दिस वन क्या फॉर्म करे? जेड फॉर्म करे. यस, मतलब क्या फॉर्म करे? ऑल्टरनेट एंगल. सो ये 40 है, सो ये भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा. यस, क्यों? जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट? यस. सो जिसकी वजह से ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. सो अगर ये 40 था तो ये भी 40 हो जाएगा. ये मतलब कौन? ए. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई. व्हाट इज द रीजन? पेयर ऑफ alternate angles are congruent, right? Congruent मतलब क्या होते हैं? Equal होते हैं. Let us assume this is equation number 1. Similarly, I can write for B. See, line L is parallel to line Q. Yes. So I will write line L is parallel to line Q and BC is transversal. BC क्या हम लोग का? ट्रांसवर्सल है. यस, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल. सी ध्यान से देखो, अभी अच्छा लगेगा. सी दिस वन क्या बना रहे? जेड बना रहे हैं, राइट? उल्टा जेड. सी, जेड बना रहे. दिस वन इज बी एंड दिस वन इज 30. सो क्या फॉर्म करे? ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करे. यस, मतलब मेजर ऑफ बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 30 के इक्वल हो जाएगा, राइट? यस. क्यों? बिकॉज वो भी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल है और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, राइट? यस. सो यू गॉट द मेजरमेंट ऑफ बी एज 30. लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर विद दिस? ओके. आपको क्या चाहिए? मेजरमेंट ऑफ एक्स चाहिए. आपको मेजरमेंट ऑफ एक्स चाहिए, राइट? यस. सो एक्स मतलब दिस वन. एक्स किसका एडिशन है? ए का और बी का. सो वी विल ऐड angle A and angle B. Angle A is 40, B is 30. So 40 plus 30 will be 70. So I got angle X as 70. So this is my answer. ये 40 और 30 कहाँ से आया? From 1 and 2. Right? Yes. ये क्या किया मैंने? एंगल्स को ऐड किया. So here you can write angle addition, angle एडिशन प्रॉपर्टी. ओके, हमने दो एंगल को ऐड किया. सो आप ये रीज़न दे सकते हो. सो यहाँ से आपको क्या मिल गया? एक्स की वैल्यू मिल गया. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड प्रैक्टिस सेट. सो विल स्टॉप ओवर हियर.